My name is Sonu Kumar Oza. I belongs to Motihari, Bihar. Right now, I'm doing graduation from Ajip University, Bhopal. Currently, I am staying in Bhopal. I have two siblings. I have completed my 10th and 12th from Bihar. My strength are solving a math problem, and my weakness is English. And that's all about me. Okay. So right now you are, what is your semester right now? Second semester? Yeah, second semester. Okay. So what are the skills you have as of now? I have HTML, skill, CSS, JavaScript, and React. Okay. So let's start with HTML. What is the HTML? So HTML is a hypertext markup language. It is used for making a website structure and bodies. Okay. What are the elements or tags are available in the HTML? Do you remember? There are many tags in HTML and Give me some example of the tag name. tag name like HTML tag, body tag, anchor tag, li tag, ul tag. What is the use of image tag? Image tag is basically used for insert the image from the Google and your device. Okay. Do you know what is the difference between a span tag or p tag? A span tag basically, a span tag is a क्या होता है? What is the difference between them? P tag is a paragraph tag and a span tag is a हिंदी में बोले No. What is semantics HTML? semantic tag is both semantic tag is a like they have closing bracket. Okay. For example, semantic tags like all tag are semantic tag in HTML. okay. What is the purpose of ALT attribute on the image? The purpose of ALT is the image is not showing on your website, so the text is show on this text. Okay. So if it is image is not visible, then it will alternate text will be so on the display. Yeah. What is CSS? CSS is a stand for cascading style sheet. It is used for making a website designs like colors and your website colors like Flexbox. Okay. Do you know what is the difference between IDs in CSS? Class and ID? Yeah. Class is a basically class is a many times of use, or ID is one time of use. ID for one time. For one Yeah. entire the page or entire the application. Tags. Based on the tag. Yeah. Or page. Yes. Not yes. You have to tell it's a like unique for the page or unique for particular tag. So classes is for everyone. We can use anywhere, and ID is for the unique identifying the any attribute or tag. Okay. Do you know what is the Flexbox and why it is used? Flexbox is a basically Flexbox.
इंग्लिश बोलने में दिक्कत होता है. No problem. You can try to explain. Flexbox is Flexbox is parent and one dips parent dips and under two childs. The dips is same line. That's is Flexbox. What is the screen size for the mobile? Dean? 403.75 pixel. What is the screen size of tablet 760 pixel. or desktop? Desktop 919 pixel. Is it any range for that? The desktop range is from that to that pixel. Okay. Top. If I ask you, like, you have to make some page as a responsive. Okay. Yes. So, what are the approach you are going to follow? Do you have any idea? No. Okay. What is JavaScript? JavaScript is a scripting language that is used for making a website, mobile apps, and web pages. Okay. What is the difference between double equal to and triple equal to operator? Double equal to uh, example, this two equal uh, 2 is equal to 2, then write 2 equal 2, and triple equal to is check the type, data types check. Value and type, both it will check by the double equal to operator or triple equal to operator. Triple equal to operator is check the type and then combines. Value as well. Hmm. Right? Did you use double equal to operator or triple equal to operator in your project? No. Right? So many places maybe you use double equal to or sometimes triple equal to also. Right? Yes. Okay. Explain the concept of closureness in JavaScript. Closureness, I don't know. Okay. What is a delegation event in JavaScript? No, I don't know. Okay. What is the use of this keyword in JavaScript? Do you know about this keyword in JavaScript? Did you create any class in the JavaScript? No. Class you not created. Then how you learn JavaScript? Without creating class, variables, without using the this keyword. How? What is the promise in JavaScript? I'm asking all about JavaScript only. It's a promise or this keyword, delegation event. All are the part of JavaScript itself. Right? Do you know about promise? How we are using? No. What is the difference between where and let? Where is a JavaScript variable and let is a variable. The difference between where and let is a When we are using the where or when we are using the let?
हिंदी में बता दूं? हिंदी में बताएं? यस, टेल मी। वेर जो होता है, एक करली ब्रेसेस के बाद कहीं पे भी वेर का यूज किया जा सकता है, उसका नंबर चेंज किया जा सकता है। और लेट जो होता है एक, मतलब करली ब्रेसेस के बाद, जब उसका करली ब्रेसेस स्टार्ट होता है उसके अंदर ही इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसी को अच्छे से याद रखना है कि ग्लोबल एक्सेस के लिए वेर का यूज करते हैं और लोकल एक्सेस के लिए लेट का यूज करते हैं। हाँ। तो जो एक्सेस मॉडिफायर होता है, चाहे एक्सेस लेवल होता है, वेर का सभी जगह पे कर सकते हैं, ग्लोबली डिक्लेयर होता है वो। और लेट क्या होता है? हम्म। किसी पार्टिकुलर ग्लोबी नहीं फंक्शन होता के है। लिए लोकली होता है। इसको हम्म। ऐसे याद रखना है। व्हाट इज द यूज ऑफ गेट एलिमेंट बाई आईडी मेथड? द यूज ऑफ गेट एलिमेंट बाई आईडी, एचटीएमएल टैग्स, एचटीएमएल टैग को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करने के लिए गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज किया जाता है। टैग को एक्सेस करने के लिए। जो टैग में आईडी डिफाइन होता है। ओके, तुमने उसको एक्सेस कर लिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? आईडी को एक्सेस करने के बाद उसमें जो भी चेंजेस करना है उसको किया जा सकता है। उसके वैल्यू में ऑपरेट किया जा सकता है। जी। हाँ। हाउ? जैसे कोई टेक्स्ट है H1, HTML में लिखा हुआ है HTML, एंड उसको जावास्क्रिप्ट से चेंज करके जावास्क्रिप्ट करना है उस टेक्स्ट को। तो हम उसका एक आईडी देंगे, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जावास्क्रिप्ट में, और वहाँ पे एक। शेयर योर स्क्रीन। यू हैव परमिशन टू शेयर इट। क्लिक ऑन शेयर। Open your favorite ID, anything, Reels code or something. You have only 5 minutes, and you have to develop one login page. Simple, in the login page, you have to provide the input field, enter user ID, and enter password. That's it.
show me the output also. You are just writing the CSS. Right? Did you remember it? पूरा याद करके रखे हो कि क्या क्या लिखना है, उसको देख करके अच्छे तरीके से बताना है मुझे। ब्राउजर दिखाओ मुझे, फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए। लॉगिन एक फॉर्म होना चाहिए। You have to submit those data, and while submitting you have to receive those data with the help of the JavaScript, and you have to display on the console. यहाँ से इसके अंदर एक बटन क्रिएट करेंगे। सबमिट ID submit or type submit. ID submit button. And what is the type? Button type. Type button है ना। Okay. जो इसके अंदर H1 है बॉक्स के अंदर, कलर है उसको मैं कर दूंगा और टेक्स्ट लाइन सेंटर और लिंक बॉक्स ये साइड से जीरो पर नीचे से कुछ तो लगता है उसको टाइप करेंगे क्या करेंगे हम कंप्लीट कंक्लूजन उसको क्या करेंगे कि उसका वेट कर देंगे 100% टाइम कर देंगे मतलब बटन कलर ब्लू होना चाहिए। और बटन का आउटर लाइन जो होना चाहिए वो रेड होना चाहिए। ईमेल आईडी डालो। ये डालने के बाद, पासपोर्ट डालने के बाद, ये दोनों वैल्यू कैप्चर करके और फिर से इसी पेज पे डिस्प्ले करना है लॉग लॉग के थ्रू। कंसोल डॉट लॉग कर देना है, नहीं तो एल्टर में डाल देना, अलर्ट में। अभी एक आईडी दे देंगे
ईमेल और उसको डाल देंगे पासवर्ड। स्क्रिप्ट फाइल अलग से बनाए या फिर यहीं पे? यहीं पे। इस तरह से नहीं लेना है, फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन को पास करना है वो दोनों वैल्यू जब सबमिट हो। फॉर्म को जब बनाए के मतलब? फॉर्म को जब सबमिट पे क्लिक करेंगे, हाँ एक फंक्शन कॉल होगा। उस हाँ। फंक्शन के अंदर ये दोनों वैल्यू रीड करना है और फिर उसको डिस्प्ले करना है। फिर इन दोनों वैल्यू को तो पहले एक्सेस करना पड़ेगा ना? ठीक है, करो। फिर बाद बटन पे क्लिक करने पे, एक इस पे फंक्शन क्लिक कॉल करने होगा। पे ऐसा। फिर यहाँ पे हम ऑन क्लिक लगा देंगे। ऑन क्लिक पे एक गेट सेम डेटा। पूछना डेटा नाम का मैसेज आएगा। और इस मेथड में पास हो जाए ईमेल आईडी और पासवर्ड। उस पे क्लिक करो। लेफ्ट लेफ्ट उसको लगाएंगे कि email down and फिर वैल्यू का यही प्रोसेस करेंगे। डॉट वैल्यू इसमें क्या करेंगे कि ईमेल को वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं उसको क्लिक को स्मॉल डॉट लॉग अंदर email सबमिशन में यहाँ पे क्लिक करो। एस
कभी कुछ तो प्रिंट करने से मिलेगा। सो देंगे ना तो प्रिंट सिर्फ करने को प्रिंट करो, ड्राइव करो तो बहुत लगी। वैल्यू तो आ रहा है बट शो नहीं कर रहा है। वैल्यू आ ही नहीं रहा है, वैल्यू इनपुट आ रहा है। ईमेल के बगल में लिखो कोमा या प्लस डबल कोट, ईमेल वैल्यू, स्पेस दे दो थोड़ा सा स्टार्टिंग में करके देखो। वैल्यू एक्सेस नहीं हो पा रहा। जो वेरिएबल बनाए हो ईमेल और पासवर्ड, लेट को वेर करो। क्यों लेट बनाए हो यहाँ पे? क्या? यहाँ पे लेट क्यों बनाए थे? लेट से वैल्यू एक्सेस किए थे इसको। नहीं आ रहा वैल्यू। चलो सेंड डेटा पे जब क्लिक हो वैल्यू ये दोनों लाइन कॉपी करके फंक्शन के अंदर डालो। ये वाला हम्म, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे ना होगा। फंक्शन के अंदर से आया है। क्यों आ रहा है? तो इसको अगर लेट भी कर दें तब भी आएगा वही। क्यों आ रहा है एक्सप्लेन करो, और सीएसएस पूरा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करो, क्यों यूज किया उसका। HTML भी। नहीं, सिर्फ सीएसएस। यहाँ पे हम लोग HTML में एक कंटेनर नाम का डिव बनाया है। क्यों कंटेनर बनाए, इसको पूरा यहाँ नाम नहीं बना सकते? कंटेनर जो ये नाम हमको अच्छा लगता है, कंटेनर मतलब एक बड़ा सा बॉक्स बनाना है, इसके लिए हम कंटेनर का यूज करते हैं ज्यादा। कोई भी नाम ले सकते हैं वहां पे। हाँ, क्लास का कोई भी नाम दे सकते हैं, आईडी का कोई भी नाम दे सकते हैं अपने मन से। बट नाम ऐसा देना चाहिए जो कि सुटेबल हो इस पे, जो कोड देख के समझ में आ जाए कि क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंटेनर बनाए और उसका विद 100% दे दिए, जो कि लैपटॉप का पूरा विद ले लेगा। जो हाइट जो ऊपर है 100 बीस है दी। स्टार करली ब्रेकेस, उसका क्या काम है? ये जो है ये रीसेट मतलब क्या बोलते हैं उसको, बॉयलर प्लेट है CSS का। स्टार से सभी सिलेक्टर मतलब सिलेक्ट हो जाता है सारे एलिमेंट। सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाता है मतलब? मतलब स्टार सिलेक्टर एक ग्लोबल सिलेक्टर की तरह काम करता है। तो इसको क्यों बनाया इसे? सारे को क्यों इफेक्ट करना है, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो? इससे जो है ब्राउजर जो है बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग ले लेता है अपना। इसके लिए उस ब्राउजर के बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन को हटाने के लिए इसका यूज करके और मार्जिन 0 और पैडिंग 0 किया गया है। सो हर एक ब्राउजर का पैडिंग और मार्जिन डिफरेंट डिफरेंट होता है। लगभग शायद। ठीक है, आगे।
उसके बाद इसका हाइट हम 100 VH लिए हैं, VH जो कि मतलब? व्यू पोर्ट हाइट, जो VH कि पिक्सल पूरे क्यों नहीं लिए? लैपटॉप के स्क्रीन का हाइट ले लेगा। पिक्सल क्यों नहीं लिए? पिक्सल भी यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, बट पिक्सल जो है, पिक्सल में अब गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कितना मतलब बड़ा स्क्रीन है। इसलिए 100 VH 100 VH जो होता है व्यू पोर्ट हाइट होता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा हाइट ले लेगा। जो भी लैपटॉप होगा, जितना भी बड़ा लैपटॉप होगा, सबका एक स्क्रीन कैप्चर कर लेगा। परसेंटेज क्यों नहीं लिए वहां पे? विड्थ में लिए और परसेंट जो है परसेंट जो है हाइट जो है पेरेंट के हिसाब से अपना हाइट ले लेगा। तो परसेंट जो जितना उसमें एलिमेंट होगा, उतना ही परसेंट वो रहेगा। बाकी फुल विड्थ उसका नहीं हो सकता है, फुल हाइट नहीं हो सकता है उसका। जितना एलिमेंट रहेगा उतना ही दूर में रहेगा वो। हम्म, ठीक है। उसके बाद इसका डिस्प्ले फ्लेक्स किए हैं, ताकि जो इसके चाइल्ड्स हैं वो सेंटर में आ जाएंगे इसके। और अलाइंग आइटम सेंटर, वर्टिकली सेंटर और हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिए हैं। इसका एक बैकग्राउंड कलर दे दिए हैं, जो कि ब्लैक कलर का है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाए हैं, जिसमें कि हम लोग का एक फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म H1 है एक। उसके बाद फॉर्म है इसके अंदर। तो उसका भी कुछ हाइट और विड्थ दे दिए हैं, बैकग्राउंड कलर एक दे दिए हैं, पैडिंग दे दिए हैं, ताकि जो इनपुट बॉक्स है हम लोग का वो चिपके ना इधर उधर, बीच में रहे सेंटर में। और एक H1 का कलर मार्जिन वगैरह दे दिए हैं। और यहाँ से इनपुट का भी दे दिए हैं 100%, हाइट एक दे दिए हैं। उसके बाद इसका कलर वगैरह दे दिए हैं, सबमिट बटन का कुछ कलर हाइट प्रॉपर्टीज कुछ दे दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का हम लोग यूज किए हैं। जावा स्क्रिप्ट में जो बटन है हम लोग का, यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे एक फंक्शन पास किए हैं, जो कि सेंड डेटा है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से एक फंक्शन चला रहे हैं, सेंड डेटा। और इसमें हम लोग जो वैल्यू हम लोग का उसको एक्सेस किए हैं, ईमेल का वैल्यू और पासवर्ड का वैल्यू, और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिए हैं कंसोल में। ठीक है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जो है, तो कंसोल क्या है यहाँ पे?